Bismillahirrahmanirrahim. This is the presentation of organic chemistry. Course instructor Professor Atif Ali Altaf. Atif Ali Altaf. My name is Abdullah Osman. Reg 5050 Section B. Sorry, this is a mistake. My presentation topic is about chemical bonding and hybridization. First of all, some theories of chemical bonding. Theories of bonding explanation for chemical bond, Lewis dot structure and the following, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इन मेटल्स। इंट्रो में केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी टू अ होल्ड टू डिफरेंट एटम्स टुगेदर एज ए पार्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड। स्ट्रेंथ ऑफ जो बॉन्ड है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बॉन्ड फॉर्मेशन में। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड है। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड की बात करूं तो आयोनिक बॉन्ड इज़ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स वन एटम एंड thermically enters into orbit around another. These two oppositely charged ions now attract each other. मीन जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हम NaCl लेते हैं। Na एक मेटल है, इसके अंदर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl इज़ ए येलो ग्रीन गैस, ये गैस होती है और इसको नीड होती है अपना वैलेंस सेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की। तो Na प्लस जो होता है, Na जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बन जाता है कैटाइन, और जो Cl है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव बन जाता है एनाइन। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? Type of chemical bond in which there is a mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. It is further classified into single, double and triple covalent bond which respect to mutual sharing of 1, 2 and 3 bonds respectively. Examples में हम क्या लेते हैं? When two hydrogen atom get close enough together, the attraction is balanced in both direction and they share the electrons between them. A covalent bond is made and hydrogen gas is formed. मतलब जो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। जब वो दोनों हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। H2, the darker are between the two nuclei shows where the two electrons which are now shared are most likely to be. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए attractive force between the hydrogen attached to an electronegative atom of one molecule and electronegative atom of a different molecule. Usually the electronegative atom is oxygen, nitrogen, fluoride which has a partial negative charge. ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोराइड होते हैं ये पार्शल नेगेटिव चार्ज मेनली होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स में। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम इज कोवलेंट बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो डायग्राम में हम देख सकते हैं there is a hydrogen bond between the oxygen and hydrogen. Thus there are 4 pairs of electrons surrounding the oxygen atom, 2 pairs involved in covalent bond with hydrogen and 2 unshared pair of opposite side of the oxygen atom.
Oxygen is an electronegative atom compared with the hydrogen. मेटेलिक बॉन्ड की बात करें तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज़ ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग formed in the metallic elements. This is the electrostatic force of attraction between the positive charged ions and the localized electrons. Metallic bonding refers to attraction between the delocalized electron and the metal nuclei. इसमें जो अट्रैक्शन होती है वो delocalized electrons की और metal nuclei की अट्रैक्शन होती है. अगर हम मेटालिक बॉन्ड की एग्जांपल लें तो एज ए मेटल कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑपोजिटिवली चार्ज, दे विल बी अट्रैक्टिव टू ईच अदर एंड आल्सो अदर मेटल कैटाइंस. These electrostatic forces are called the metallic bonds, and these are what hold the particles together in metals. Now we start hybridization. Hybridization होती क्या है? The intermixing of two or more pure atomic orbitals of an atom which almost same energy to give same member of identical and degenerate new type of orbitals is known as hybridization. The new orbitals formed are also known as hybrid orbitals. During hybridization, the atomic orbitals with different characteristics are mixed with each other. मीन इनमें दो और मोर ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और वो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी. उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं जिसमें SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3. अगर मैं SP की बात करूं तो इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbitals having equal energy to give two identical and degenerate hybrid orbitals called SP hybridization. इसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है और ये लीनियर होता है. इसमें जो S करैक्टर है वो 50% होता है और P करैक्टर भी 50% होता है. हाइब्रिडाइजेशन इसमें SP हाइब्रिडाइजेशन में हम बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं जिसमें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B's ground state is 1s2 2s2. Since there are no unpaired electrons, it undergoes excitation by promoting one of 2s electrons into empty 2 orbitals. उसके बाद thus in the exciting state the electronic configuration of beryllium is 1s2 2s2 2p1. Then beryllium atom forms bond. Usually these pure orbitals, the molecules might angular, however the observed shape of BeCl2 is linear. तो BeCl2 की शेप जो होती है वो लीनियर है, जैसे कि हम SP में पढ़ के आए हैं. ये उसकी एग्जांपल है. The figure shows that the BeCl2 is in the linear shape 180 degree angle. उसके बाद अगर मैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसमें एक S ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो वो जब न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम शेप के होंगे और सेम जो है वो साइज़ के होंगे. इसमें अगर हम इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है. इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है. इसमें जो S करैक्टर होता है वो 33.3% होता है और जो P करैक्टर है क्योंकि 2 P हैं तो वो 66.6% होता है. अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो BCl3 ब्रोन ट्राइक्लोराइड ये जब शेप में देख सकते हैं. इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है. उसके अलावा इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है.
अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसमें सेम एज़ जैसा कि पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि अगर sp2 होगा तो 1s और 2p होंगे, अगर sp होगा तो 1s और 1p होगा, अगर sp3 होगा तो 1s एंड 3p होगा। जब ये इंटरमिक्स होंगे ऑर्बिटल्स तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स 4 ने आइडेंटिकल डिजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें जो अगर मैं एंगल की बात करूं तो 109 डिग्री एंगल होता है। और अगर इसकी मैं शेप की बात करूं तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है। अगर मैं करैक्टर वाइज बात करूं तो 25% एस करैक्टर होता है एंड 75% पी करैक्टर होता है। और इसकी एग्जांपल में हम CH4 ले लेते हैं। अगर मैं इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके जो बनता है एंगल, जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और जो एंगल होता है वो 109.28 डिग्री बोन एंगल इनके दरमियान होता है। ओके जी, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन सेम एज इसमें 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल 5 डिजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर हम इनकी जो बात करें शेप की तो वो ट्राइगोनल प्लेनर एट ए राइट एंगल होगी। अगर मैं इसके करैक्टर वाइज बात करूं तो 20% करैक्टर होगा एस का, 60% होगा पी का एंड 20% होगा डी का। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं PCl5। इसकी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे जो तो ये इसकी जो शेप है वो ये वाली बन जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल विथ 20 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल के साथ। सेम एज अगर हम बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की तो सेम एज इसमें 1s एंड 3p एंड 2d। तो ये जब इंटरमिक्स होंगे तो 6 आइडेंटिकल एंड डिजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। These 6 sp3d2 orbitals are arranged in octahedral symmetry। मतलब ये जो शेप क्या होगी, octahedral symmetry होगी। और एंगल by making angle 90 डिग्री angles to each other, this is arrangement can visually and 4 orbitals arranged in square plane and remaining 2 orbitals are oriented above and below this plane perpendicularly। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये जो पीछे बता चुका मैं कि इसकी जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। फिगर में शो हो सकता है। सेम एज अगर हम sp3d3 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जैसा कि इसमें हमें पता है कि 1s करैक्टर होगा, 3p करैक्टर होंगे एंड 3 ही d करैक्टर होंगे। तो जब ये इंटरमिक्स होंगे तो हमें 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे विच आर ओरिएंटेड इन पेंटागोनल बाईपिरामिडल सिमेट्री। ये शेप पेंटागोनल बाईपिरामिडल सिमेट्री होगी। 5 among the sp3d3 orbitals are arranged in a pentagonal plane by making angle of 72 degree of angles। इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा। The remaining are arranged perpendicularly above and below the pentagonal plane। अगर हम इसकी बात करें तो
आयोडाइड आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की एग्जांपल हम लेते हैं। इसके हाइब्रिडाइजेशन करके जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे सेम एनर्जी के साथ, सेम एनर्जी के साथ, सेम शेप के साथ जब इंटरमिक्स होंगे तो जो शेप है वो जैसा कि पहले बता चुका पेंटागोनल एंड बाईपिरामिडल होगी इसकी शेप, और एंगल जो होगा वो 72 डिग्री होगा। तो ओके जी, तो मैं अगर बात करूं इन शॉर्ट फॉर्म जो शेप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में, sp की लीनियर होगी, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, sp3 की टेट्राहेड्रल पाइरामिडल और बेंट होगी, और sp3d की ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ट्राइगोनल प्लेनर या फिर लीनियर भी हो सकती है। अगर मैं sp3d2 की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर और लीनियर भी हो सकती है। So this is my topic. Thank you.